Dear students, welcomes to you on online platform of Sri Sham Educational Group Bhadra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you exercise 12, miscellaneous of exercise 12. Our question number 24. Prove that the angular bisector of any angle of triangle and perpendicular bisector of its opposite side, if intersect each other, then it intersect to circumcircle. Okay, this is triangle ABC and this line is angular bisector of angle A. Okay, and this line, it means XY, is perpendicular bisector of opposite side of angle A. Okay, these are intersect to each other at point D. To prove that point D is situated on circumference of triangle, circumcircle of triangle. अपन को प्रूव करना है कि पॉइंट D जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस एंगल का, एंगुलर बाइसेक्टर का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का और इस एंगल का जो एंगुलर बाइसेक्टर लाइन है वो इंटरसेक्ट करते हैं। वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड होएगा? इस ट्राइंगल के सर्कम सर्कल पे सिचुएटेड होएगा। ऐसा अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। Again, the angle bisector of any angle of triangle. The angle bisector of any angle. This is angle bisector of angle A. Okay, and perpendicular bisector of its opposite side. BC is opposite side of angle A. Okay, if intersect each other, then it intersect to circumcircle. यानी ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? इस ट्राइंगल के सर्कम सर्कल पे सिचुएटेड है। ऐसा आपने को क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो नाउ लेट XY is the perpendicular bisector of BC. Suppose that XY is the perpendicular bisector of side BC. Clear? ये हमने सपोज किया। XY is the perpendicular bisector of BC of triangle ABC. Clear? And ABDC is circumcircle of triangle ABC. ABDC. This is name of circumcircle. Okay. This is circumcircle of triangle ABC. What is the name of circumcircle of triangle ABC? ABDC is circumcircle of triangle ABC. The perpendicular bisector XY intersect circumcircle at point D. Okay, this is perpendicular bisector of side BC intersect circumcircle at point D. Clear? Now, and intersect the side BC at point M and intersect the side BC at point M. यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस साइड BC का, जो साइड BC को M पर इंटरसेक्ट कर रहा है और जो सर्कम सर्कल है ट्राइंगल का उसको पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, AD is the angular bisector of angle A. AD, this is side AD. AD is the angular bisector of angle A. ये अपन को गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने सपोज किया है। ओके, AD is the angular bisector of angle A. Prove that the angular bisector of angle A passes through from point D. The angular bisector of point of angle A passes through from point D. Okay, this is our target. Construction joined point D to B and C. Point D to B and C. Clear? Joined
point D to B and C. Okay. Proof. In triangle BDM, this is triangle BDM, okay, and triangle CDM, इनको अपन कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे, इनको अपन क्या कर देंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे. तो BM is equal CM, okay, BM is equal CM because this is perpendicular bisector of side BC, okay, and M एंगल, M पॉइंट पे बोथ एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, ठीक है. तो BMD एंगल BMD एंड एंगल CMD इज 90 डिग्री. व्हाट इज रीजन ऑफ दीज स्टेटमेंट? बिकॉज XY इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC. XY is the perpendicular bisector of side BC. Now SA and DM is common side. DM is common side. Okay. तो SAS side angle side. By side angle side congruency law, BDM is congruent to triangle CDM. Triangle BDM is congruent to triangle CDM. So BD is equal CD. BD is equal CD. Why? By CPCT. BD is equal, this side is equal this side. Okay. BD is equal CD by CPCT. So arc BD is equal arc CD. Arc BD is equal arc CD. Arc BD is equal arc CD. इसको अपन ऐसे राइट करेंगे, DC राइट करें इसको, DC बिकॉज इसमें कॉम्यूटिविटी रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है. BD arc BD is equal arc DC. These are chords of circle, okay, and these are also side of triangle, okay. Now chord BD, we can say chord BD is equal chord DC. Chord BD is equal chord DC, okay. Now arc BD is equal arc DC because we know that corresponding arcs are equal of equal chords. Corresponding arcs are equal of equal chords, okay. Hence point D situated on circumcircle, point D situated on circumcircle of triangle, okay. So the angular bisector of angle A passes through from point D. The angular bisector of angle A passes through from point D. It means point D situated on circumcircle of triangle, okay. Hence proved, okay. Now question number 25. If any circle, the circle name AYDZBWCX, AYD, what is this? This is name of circle. AYDZBWCX. Two chord AB and CD intersect each other at right angle in figure. Solution, प्रूव करना है अपन को. अर्क CXA प्लस अर्क DZB. अर्क CXA, दिस इज अर्क CXA प्लस अर्क DZB, दिस इज अर्क DZB इज इक्वल अर्क AYD प्लस अर्क BWC is equal semicircle. This is our target, okay. This is our target, okay. Solution given that, तो ये सर्कल AYD
ZBWCX. Okay, in figure, in circle AYD ZBWCX, these points are situated on circumference of circle. It means on circle. Okay, so circle name is AYD ZBWCX. Okay, chord AB and chord CD is perpendicular to each other. Okay, now prove that arc CXA, this is arc CXA plus arc DZB is equal arc AYD plus arc BWC is equal semicircle. Construction: joined AC, AD, BD and BC. Joined AC, AD, BD and BC and set numeric named of some angles like that. This angle A, this angle is B, this angle is this angle is 1, this angle is 2, this angle is 3, this angle is 4. Okay, let intersecting point of chord AB and CD is M. Intersecting point of chord AB and chord CD is M. Proof: angle formed by arc CXA, this is arc CXA and this is formed angle. Okay, angle formed of CXA, angle formed by arc CXA is angle 2. This is angle 2. What is this? This angle is formed by arc CXA. Similarly, this is arc DZB and this is angle formed by arc DZB, angle 1. Okay, angle formed by arc CXA, angle formed by arc CXA is angle 2 is equal angle 2, equation first, and angle formed by DZB, so angle formed by DZB is angle 1. Okay, let this is equation number second. In triangle CMB, angle 1 plus angle 2 plus angle CMB, this is angle this is triangle CMB, 1, 2 and angle CMB is equal 180 degree according to angle sum property of triangle. Put the value of CMB is 90 degree. So angle 1 plus angle 2 plus 90 is equal 180 degree. By transformation 90 transfer, so angle 1 plus angle 2 is equal 90 degree. Okay, we put of angle 1, angle formed by CXA. What is angle 1? Angle 1, तो एंगल 1 की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? DZB. ओके, या इसको अपन एंगल 1 बोल देते हैं, इसको अपन ने एंगल 2. ठीक है, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. एंगल 1 CXA. ओके, तो एंगल फॉर्म्ड बाय CXA, इसको अपन ने इंटरचेंज कर दिया 1 एंड 2. तो CXA, एंगल फॉर्म्ड बाय CXA, एंगल 1 को पुट किया हमने. व्हाट इज एंगल A? एंगल फॉर्म्ड बाय arc CXA. What is angle 2? Angle formed by arc DZB is equal 90 as it is. Okay, by equation first and second. तो अगर 2 arc के द्वारा जो एंगल का सम है वो 90 डिग्री हो जाए, अगर 2 एंगल के द्वारा जो एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो वो दोनों अर्क मिलकर के कौन से
अर्क की फॉर्मेशन करेंगे, सेमी सर्कल की फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान रखें स्टेटमेंट, इफ टू अर्क फॉर्म्ड 90 डिग्री बाय सम ऑफ formed angle of two arc is 90 degree, then the arc formed an semicircle arc. ओके, यानी टू अर्क के द्वारा अगर जो एंगल सबटेंड किया गया है उनका सम कितना हो जाए 90 डिग्री, तो वो दोनों अर्क मिलकर के किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सेमी सर्कल की फॉर्मेशन करेंगे। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। This is our equation number third. Okay. Now, angle formed by arc AYD by, ये सिमिलरली ऐसे ही करना है, इसमें इस ट्राइंगल में आ जाएंगे अपन, ठीक है। तो एंगल फॉर्म्ड बाय arc AYD is equal angle 3. This is equation number 4th. Okay, and similarly angle formed by arc BWC के द्वारा ये एंगल है एंगल 4, और AYD के द्वारा ये एंगल है एंगल 3, ठीक है। नाउ एंगल 4, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5th। इन ट्राइंगल AMC, in triangle AMC, angle 3 plus angle 4 plus angle AMC is equal 180 degree by angle sum property of triangle, angle sum property of triangle. Okay, now put the value of angle AMC, angle 3 plus angle 4 plus 90 degree is equal 180 degree, angle 3 plus angle 4 is equal 180 minus 90, so angle 3 plus angle 4 is equal 90 degree. Put the angle 3 and angle 4 by equation 4th and equation 5th. Okay, तो अपन राइट कर सकते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय, एंगल 3 की जगह राइट करेंगे एंगल फॉर्म्ड बाय अर्क, दिस इज अर्क साइन, ओके, AYD प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ एंगल 4, एंगल फॉर्म्ड बाय arc PWC and 90 degree as it is. Okay, we know that if sum of angle formed by two arc is 90 degree, then the arc formation of arc of semicircle. Okay, so we can write angle AYD plus arc AYD plus arc BWC is equal 90 के प्लेस पे सेमी सर्कल। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 बाय इक्वेशन 3rd and इक्वेशन 6th, बाय इक्वेशन 3rd and equation 6th, by equation 3rd and equation 6th we can write arc CXA plus arc DZB is equal arc AYD plus arc BWC is equal semicircle. If two portion are equal to each other, then all three portion are equal to each other and two portion are equal to each other. Okay, semicircle.
semi circle. Hence proved. Hence proved. ये arc CX से और ये एंगल सबटेंड एंगल फॉर्म्ड बाय CX से. ओके, दिस इज arc DZB एंड दिस इज एंगल फॉर्म्ड बाय arc DZB. इनका सम कितना है 90 डिग्री. तो ये अर्क और ये अर्क मिलकर के कौन से अर्क की फॉर्मेशन करेंगे, अर्क ऑफ सेमी सर्कल की. ठीक है. सिमिलरली तो यहाँ पे हमने आपको डिटेल बताई कि एंगल फॉर्म्ड बाय अर्क CX से 1, एंगल फॉर्म्ड बाय DZB इज इक्वल टू, और CMB में ये 90 डिग्री का हो गया, तो इनका सम कितना बच जाएगा 90 डिग्री का. तो ये दोनों अर्क जो हैं वो 90, इनके द्वारा जो एंगल फॉर्म्ड किया गया है उनका सम 90 डिग्री का है. तो ये दोनों अर्क मिलकर के अगर इन दोनों अर्क को अपन ऐड कर दें तो ये कौन से अर्क की फॉर्मेशन कर देंगे, सेमी सर्कल अर्क की फॉर्मेशन कर देंगे. अपन पहले ही पढ़ चुके हैं क्या कि टाइप ऑफ अर्क कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, माइनर अर्क, मेजर अर्क एंड सेमी सर्कल अर्क. ओके, तो इनके द्वारा जो एंगल सबटेंड है उनका सम कितना है 90 डिग्री. तो ये दोनों अर्क अगर ऐड हो जाएंगे तो कौन से अर्क की फॉर्मेशन करेंगे, अर्क ऑफ सेमी सर्कल की. सिमिलरली ये अर्क है AYD, AYD के द्वारा ये एंगल, इस एंगल 3 की फॉर्मेशन हुई है, और BWC के द्वारा कौन से एंगल की फॉर्मेशन हुई है, एंगल 4 की फॉर्मेशन हुई है. और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री लेस हो गया, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री. तो ये दोनों अर्क जो हैं उनके द्वारा जो एंगल सबटेंड किए जा रहे हैं उनका सम कितना है 90 डिग्री. तो ये दोनों अर्क अगर इनको अपन ने ऐड कर दें तो ये कौन से अर्क की फॉर्मेशन करेंगे, ये भी सेमी सर्कल की फॉर्मेशन करेंगे. तो सिमिलरली एंगल फॉर्म्ड बाय अर्क AYD इज इक्वल 3, एंगल फॉर्म्ड बाय BWC इज इक्वल 4. तो 3 + 4 + AMC ये वाला ट्राइंगल हो गया. इसमें इसका वैल्यू AMC का वैल्यू पुट कर दिया, तो 3 + 4 90 डिग्री. तो ये 3 किसकी वैल्यू, एंगल फॉर्म्ड बाय, व्हाट इज एंगल 3, एंगल फॉर्म्ड बाय अर्क AYD, एंड व्हाट इज एंगल 4, एंगल फॉर्म्ड बाय अर्क BWC. ये अपन ने कहां से राइट किया, बाय इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 5th यहां से राइट किया. तो इन दोनों अर्कों के द्वारा जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है उनका सम 90 डिग्री है. तो ये दोनों अर्क ऐड होकर के किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सेमी सर्कल की फॉर्मेशन करेंगे. ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई. बाय इक्वेशन 3rd एंड 6th वी कैन राइट एंगल वो अर्क CX से प्लस अर्क DZB इज इक्वल अर्क AYD प्लस अर्क BWC इज इक्वल सेमी सर्कल कॉमन है, तो सेमी सर्कल राइट कर दिया. ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ओके, in question number 26, if triangle ABC is a equilateral triangle, okay, this is a equilateral triangle in a circle, ABC is a equilateral triangle in a circle, okay, and point P is any point on short arc BC. P is any point on short arc BC. This is short arc BC and P is any point on a short arc BC, which is not coincidence B and C. यानी B and C ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है. ओके, यानी ये BP एंड PC क्या नहीं है, इक्वल नहीं है. ये आपको मानना है. BP एंड PC क्या नहीं है, इक्वल नहीं है. Which is not coincidence of B and C, then prove that PA is bisector of angle BPC. PA is, this is PA is bisector, angular bisector of angle BPC. This is our target. Now solution, given that triangle ABC is a
an equilateral triangle, it means AB is equal BC is equal AC, AB is equal BC is equal CA, we can say. Okay, point P is situated on minor arc BC. Prove that PA is angular bisector of angle BPC. It means angle BPA and angle CPA, इनको अपन को प्रूव करना है इक्वल. ठीक है. नाउ कंस्ट्रक्शन जॉइंट BP and PC, BP and PC. Okay, joined PB and PC. Proof: AB is equal AC, or we can say CA. AB is equal CA. Okay, then arc AB is equal arc CA. Arc AB is equal arc CA. Or what is this? This angle is subtended by arc AB, and this arc CA, and this angle is subtended by arc CA. Okay, this angle is subtended by arc CA. अगर कोई भी arc और कोई भी chord से आपको एंगल सबटेंड करना है, तो जो एंड पॉइंट ऑफ आर्क और एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है उनको आप मीट करा दो उस पॉइंट से. ठीक है, तो वो एंगल सबटेंड हो जाएगा. तो व्हाट इज दिस? दिस इज एंगल सबटेंड बाय आर्क AB. एंड व्हाट इज दिस? दिस एंगल इज सबटेंड बाय आर्क CA. ओके, C एंड A से इसको ज्वाइन करा दिया, तो दिस एंगल इज सबटेंड बाय आर्क CA. आर्क CA. तो arcs are equal, so their subtended angle is also equal according to theorem. Angle BPA is equal angle CPA, because this angle is subtended by arc AB and this angle is subtended by arc CA. We know that equal arcs subtend equal angles. Okay, equal arcs subtend equal angles. और ये एंगल इक्वल हो गई, तो ये एंगल इक्वल हो गई, ये अपना टारगेट था. तो हेंस PA इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPC. ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है. ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा. ये साइड ऑफ ट्राइंगल है, तो ये इक्वल होगी, ये इक्वल होगी, तो इनके आर्क भी, कोरस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल हो गए. ओके, यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं? corresponding arcs are equal of equal chords. जो chords इक्वल होती हैं उनके corresponding arc भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. और जो इक्वल आर्क होते हैं वो इक्वल एंगल की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं. तो ये एंगल क्या हो जाएंगे? ये कॉर्ड इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल हो जाएंगे, और आर्क इक्वल हो गए तो इनके द्वारा जो एंगल सबटेंड किए गए हैं वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो हेंस PA इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPC. ओके, now question number 27. In figure, AB and CD are two chords. AB and CD are two chords which are intersect to each other at point E. Which are intersect to each other at point E. Okay. Or then prove that angle AEC. This is angle AEC. Angle AEC is equal half of angle made by CXA on center plus angle made by arc DYB on center. This is angle made by, this angle is made by arc CXA on center, angle AOC. Okay, and arc DYB by arc DYB on center is angle DOB. Okay, so AEC is equal half of angle AOC
प्लस एंगल DOB, इन दोनों के सम का हाफ एंगल AEC के इक्वल प्रूव करना है अपने को, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ये देखिए, ये तो CXA के द्वारा सेंटर पे एंगल हो गया और ये एंगल CXA के द्वारा अदर रिमेनिंग पॉइंट पे हो गया ABC, ठीक है। सिमिलरली DOB जो है, DOB ये तो सेंटर पे एंगल हो गया और आर्क DP के द्वारा जो रिमेनिंग पोर्शन पे ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये लाइन ज्वाइन नहीं है, अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो इस एंगल में और इस एंगल में रिलेशन हो जाएगा और इस एंगल में और इस एंगल में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन पॉइंट B टू पॉइंट C, पॉइंट B टू पॉइंट C, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट point B to point C. Okay. Proof: we know that by theorem angle subtended by any arc at center is double of that subtended by same arc in remaining portion of circle at any point. Okay. तो angle made by arc CXA, this is arc CXA, एंगल मेड बाय आर्क CXA, तो C एंड A को ज्वाइन करा दिया सेंटर से, तो AOC और A एंड C को रिमेनिंग पोर्शन पे जो पॉइंट है B उससे भी ज्वाइन करा दिया, तो टू एंगल ABC, ये जो एंगल है वो ABC का क्या होएगा, ट्वाइस होएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली दिस इज आर्क DYB और ये DYB के द्वारा सेंटर पे एंगल की फॉर्मेशन होगी, DOB एंगल DOB एंड ये रिमेनिंग पोर्शन पे, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन किया था, ये रिमेनिंग पोर्शन पे पॉइंट C है, तो इस पे कंस्ट्रक्शन होगी कौन सी, टू एंगल DCB, टू एंगल DCB। ओके, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, adding equation first and equation second, angle AOC plus angle DOB, okay, तो टू एंगल ABC plus टू एंगल DCB, टू एंगल DCB, taking common 2 in right side, तो 2 in bracket एंगल ABC plus एंगल DBC, okay, और 2 हमने ट्रांसफर कर दिया, 2/1 है तो ये यहाँ पे ब्रैकेट यूज होएगा, और 2 का 2/1 है तो इधर ट्रांसफर होएगा तो 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट की नीड होएगी, अब वो 1 टर्म है देन, तो ब्रैकेट की नीड होएगी, यानी ABC प्लस DCB में क्या रिलेशन आ गया, हाफ ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल DOB, ओके, हाफ ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल DOB, ओके। अब यहाँ पे देखिए इस एंगल में और इस एंगल में मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को आप सीन करो ECB को, इसमें इस साइड को प्रोड्यूस किया हमने, तो यहाँ पे जो एंगल AEC है, AEC वो किसके इक्वल होएगा, ECB के, इस एंगल के, और EBC के, इस एंगल के इक्वल होएगा। कौन सी थ्योरम से, वन साइड प्रोड्यूस्ड ऑफ ए ट्रायंगल देन फॉर्म्ड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू the sum of interior opposite angle, okay, in triangle ECB, in triangle ECB, in triangle EBC, ECB या EBC, AEC, this exterior angle, this is exterior angle, AEC is equal ECB plus EBC, okay, okay, और EBC को अपन ने राइट किया ABC और ECB को राइट किया DCB, ECB को क्या राइट किया, ECB को राइट किया DCB, ओके, और करके चेंज कर दिया, करेक्शन पॉइंट हो गया, और EBC को राइट किया, EBC को राइट किया ABC, ओके। अब DCB और ABC इनका सम इक्वेशन सेकंड वो थर्ड में है, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में, ये अपन रिलेशन पहले ही फाइंड कर चुके, तो ABC प्लस DCB को क्या राइट कर सकते हैं अपने, DCB प्लस ABC को क्या राइट कर सकते हैं, हाफ ऑफ
एंगल AOC, हाफ ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल DOB, हाफ ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल DOB। ओके, तो हेंस हाफ AEC इज इक्वल हाफ ऑफ दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाय आर्क AXC या CXA on center and this angle is formed by arc DYB on center। okay, तो एंगल AEC is equal half of angle made by CXA on center एंगल AOC, इसकी जगह ये इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किया, ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज है। और DOB, व्हाट इज DOB? एंगल मेड बाय आर्क DYB ऑन सेंटर, ये एंगल, इसकी जगह अपन ने मैथमेटिक्स लैंग्वेज यूज किया और यही अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अगेन रिपीट, ये एंगल और इस एंगल में रिलेशन है, AOC इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। ओके, इन दोनों एंगल्स में रिलेशन है। और DYB के द्वारा ये एंगल है DOB में, इस एंगल में, और DCB ये रिमेनिंग पोर्शन पे एंगल है, इन दोनों में रिलेशन है। ठीक है बच्चों, तो हमने इनको ऐड कर दिया, AOC और DOB इन दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये राइट पोर्शन में है, इन दोनों को भी अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इन दोनों का रिलेशन इस एंगल के साथ है और इस एंगल का रिलेशन AEC का रिलेशन इन दोनों के साथ अपने को चाहिए, तो इनमें तो अपन कोई करेक्शन नहीं करेंगे। हमने AOC ट्वाइस ऑफ एंगल ABC और DOB ट्वाइस ऑफ एंगल DCB, ये टू इक्वेशन AOC DOB को अपन ने ऐड कर दिया इन दोनों एंगल्स को, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन इन दोनों के इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का सम है वो इसके इक्वल होएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये दो इक्वेशन आई, इनको अपन ने ऐड कर लिया। ठीक है, और 2 कॉमन टैग किया और 2 को ट्रांसफर कर दिया इधर, हाफ ऑफ AOC और DOB, और ये दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स, इनको अपन AEC में कन्वर्ट करेंगे, तो AEC किसके इक्वल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल होएगा, ये दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होएगा इस ट्रायंगल में अपन देखें तो। ठीक है, इन 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होएगा। तो EBC को अपन ने ABC राइट किया और ECB को राइट किया DCB, यानी ये दोनों एंगल्स हैं, उनका इस AEC के साथ रिलेशन है, और इन दोनों का रिलेशन किसके साथ है, जो सेंटर पे एंगल्स हैं उनके साथ है। तो ये जो रिलेशन आया उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, हाफ ऑफ एंगल AOC प्लस हाफ ऑफ एंगल DOB। ओके, और ये इनको इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज कर दिया, ये क्या है, एंगल मेड बाय आर्क CXA ऑन सेंटर एंड दिस इज एंगल मेड बाय आर्क DYB ऑन सेंटर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन you repeat this video। okay, thank you।